Hey there, I hope you people are doing well. I'm excited and grateful to get you people back on the channel. Welcome all of you to my medical channel, that is Medical Simple. Last two videos we discussed the cardiovascular system, the basics of the cardiovascular system. This is the final video for the same and we'll end the cardiovascular basics with today's video. Before I move on, again I request all of you to see the video till the end. Do subscribe the channel, do ask the questions and leave the comment. Ask me any topic you want to cover in future. Okay. With this, let us go ahead with the cardiovascular system basics part 3, and this is the final part for the basics of cardiovascular system. So with this, let us move on. The first thing that we are going to discuss here is systole and diastole. Okay, two important terminologies. One is systole, another is diastole. Before I make you understand what is systole and what is diastole, okay, let me quickly revise you people. एक बार इस चीज का रिवीजन कर लेते हैं that we discussed in the previous two sessions, in the previous two videos. That is physiology of the heart. See, this is important with the context of systole and diastole. ठीक है, तो एक बार एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं. As such, you know that this is what the heart is, having a 4 different chambers, 2 atriums right and left, 2 ventricles right and left. Okay. How exactly the heart functions? Okay. 2 vena cavas, that is inferior vena cava, superior vena cava, the biggest vein of the body. This takes the blood from lower part of the body. This takes the blood from the upper part of the body. यहाँ से यहाँ का और नीचे से यहाँ का, यहाँ पे आता है. So they both put the blood. Now see you understand कि भाई ये वेना कावा का ब्लड है, मतलब ये ब्लड ऑलरेडी यूज हो चुका है, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन नहीं है. सो दिस ब्लड, ये ब्लड है वो कहां पे आके खुलेगा? राइट एट्रियम में खुलेगा. राइट एट्रियम फिलअप करेगा. Then the blood is going down to the right ventricle. From the right ventricle, through the pulmonary artery, it goes to the lungs. Lungs, there is a purification. Last video I said, lungs are the purifiers, they are the aquaguard. सिर्फ हार्ट क्या है? सिर्फ पंपिंग मशीन है. लंग्स क्या करेगा? नो, वी आर डूइंग दिस ब्रेथ इन ब्रेथ आउट. ब्रेथ इन के टाइम पे ऑक्सीजन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है. ये ऑक्सीजन लंग्स कहां पे डाल देगा? ब्लड में. Now your blood is purified through this pulmonary veins. Right pulmonary veins, left pulmonary veins. It enters into the left atrium. Now this is a pure blood. ऑक्सीजन वाला आया ना लंग से, तो ये प्योर ब्लड है. यहां से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू द एओर्टा. दैट्स द बिगेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी. इट एंटर्स इनटू द बॉडी अगेन विद इन द बॉडी. इट इज सर्क्यूलेटेड. पूरा सर्कुलेशन के टाइम पे क्या होगा? वो सेल्स को ऑक्सीजन देगा, कार्बन डाइऑक्साइड वापस लेगा. अगेन थ्रू द इंफीरियर सुपीरियर वेना कावा इट कम्स टू द एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, देन थ्रू दिस आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, लंग्स से वापस होके यहां से लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, एओर्टा, बॉडी. एंड दिस इज हाउ द होल सर्कुलेशन गोज ऑन. आई होप यू रिमेंबर द एंटायर सर्कुलेशन पाथवे. Right. Now, why it was important for me to remind or revise this thing? ये जानना जरूरी है. See, as I said, this process does not happen in a stepwise as I mentioned. ये कैसे होता है ये भी मैंने आगे बताया, एक बार आप जरूर वो वीडियो देखिएगा. राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम साथ में फिलअप होते हैं. ठीक है, जैसे ही ये फिलअप हो जाएंगे, यहां का ब्लड यहां आएगा और यहां का ब्लड यहां आएगा. जैसे ही ये फिलअप होंगे, एट्रियम क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. मैंने ऐसा एग्जांपल दिया था, ये एट्रियम से, तो ये एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट ऐसे करेंगे, तब जाके देखो जब एट्रियम फिलअप होता है, ये फिलिंग हो रहा है यहां पे. ठीक है, तो नीचे का वाल कैसा है? बंद रहता है. ये बंद वाल है. सी, ट्राइकस्पिड इज क्लोज्ड, बाइकस्पिड मिट्रल इज क्लोज्ड. ठीक है, जैसे ही फिलअप हो जाएगा,
this valve contract like this, this atriums contract like this. प्रेशर आया वाल्व पे, वाल्व खुला, अब दोनों ही नीचे गए. राइट एट्रियम सेंड इट टू द राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम सेंड इट टू द लेफ्ट वेंट्रिकल. ठीक है. नाउ वेंट्रिकल इज फिलिंग अप. जब वेंट्रिकल भर रहा है, दिस टू वाल्व्स रिमेन क्लोज्ड. हाँ, ये पल्मोनरी और ये वाला एओर्टिक बंद रहेगा. जैसे ही वेंट्रिकल भर जाएगा, दिस पल्मोनरी एंड एओर्टिक गेट्स ओपन्ड. क्यों? क्योंकि वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा. ठीक है. वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ब्लड जाएगा यहां से लंग्स में, यहां से बॉडी के अंदर. ठीक है. दिस इज हाउ द ब्लड सर्कुलेशन इज टेकिंग प्लेस. Okay, now do remember this and do observe this. When your ventricles are contracting to send the blood out of the heart, at that time what atriums were doing? Atriums क्या कर रहे हैं? Contract करेंगे या relax करेंगे? Atriums are relaxing. ठीक है. जब ये ब्लड को बाहर भेज रहे हैं, तो ये दोनों क्या करते हैं? ब्लड को अंदर ले रहे हैं. यहां का ब्लड यहां पे आ रहा है, यहां का ब्लड यहां पे आ रहा है. ठीक है. दिस इज हाउ व्हेन वेंट्रिकल्स आर कॉन्ट्रैक्टिंग, एट्रियम्स आर रिलैक्सिंग. ठीक है. इमीडिएटली आफ्टर दिस व्हाट विल हैपन? जैसे ही भाई इसका कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो गया. क्यों? क्योंकि इसमें जितना ब्लड था अब चला गया. नाउ दे नीड अ ब्लड. ऊपर फिल हो चुका है. नाउ व्हाट विल हैपन? दिस atrium contract, ventricle relax. So whoever are receiving the blood, they remain relaxed. Am I clear? Whoever are receiving the, जब ये रिसीव करते ये रिलैक्स रहते, ये रिसीव करते तो ये रिलैक्स रहते. ठीक है. बट एट अ मोमेंट पूरा हार्ट कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा. हार्ट सिर्फ दो पोजीशन में रह सकता है, या तो वो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा या तो डायलेट रहेगा. ठीक है. बट पूरा हार्ट कभी एक पोजीशन में नहीं आएगा. जब आपके एट्रियम्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वेंट्रिकल्स रिलैक्स, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एट्रियम्स रिलैक्स. नाउ दिस इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड. ठीक है. ये चीज समझनी जरूरी थी. ठीक. With this, again I am repeating, when ventricles contract, atrium relax. When atrium contracts, ventricle relax. ठीक है. So, come to the important terminologies, systole and diastole. What is systole? Generally, contraction of the heart is known as systole. Contraction of the heart. अब जैसे मैंने बताया, पूरा हार्ट कभी एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा ही नहीं. या तो आपका एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब वेंट्रिकल रिलैक्स, या तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये रिलैक्स. तो कौन सा कॉन्ट्रैक्शन हमें कंसीडर करना है? व्हेन आई टॉक अबाउट सिस्टोल, आई नीड टू कंसीडर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स एंड नॉट द एट्रियम. व्हेन योर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट, the condition known as systole. Opposite to this, when your ventricles relax, see the situation, ये contracted ventricle है, ये dilated ventricle है, size से पता चल जाता है. When your ventricles relax, when they are receiving the blood, that condition is known as what? That condition is known as diastole. So systole, contraction of ventricle. Diastole, relaxation of ventricle. I hope it is very clear to everyone, right? Coming next, a very interesting topic, cardiac cycle. बचपन से भाई सीखते आ रहे हैं हम. नॉर्मल हार्ट रेट कितना है? नॉर्मल हार्ट रेट है 72 पर मिनट, दैट इज 72 पर मिनट, है ना. एक मिनट में 72 बार आपका हार्ट धबकता है हाथ रख के. ठीक है. नाउ हाउ दिस नंबर 72 रिचेस, ये 72 का नंबर आया कहां से? Am I right? This is interesting thing to understand. अभी तक हमने देखा that what is systole and what is diastole. What is systole and what is diastole? Systole में क्या होता है? वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, डायस्टोल में वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा. ठीक है. सो दिस सिस्टोल इज जनरली ऑफ 0.3 सेकेंड. कितने सेकेंड का सिस्टोल है? 0.3 सेकेंड. देन वेंट्रिकल रिलैक्स, ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ना, तब ये नीचे ब्लड आ रहा है, वेंट्रिकल रिलैक्स.
relaxation of ventricle, that is a diastole, is of 0.5 second. तो टोटल सिस्टोल प्लस डायस्टोल मिला के कितना हो गया? 0.8 सेकेंड. Systole plus diastole is 0.8 second. This 0.8 second, okay, one systole plus one diastole equal to cardiac cycle. ठीक है, कार्डियक साइकिल को नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं हार्ट बीट. नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? हार्ट बीट. तो एक हार्ट बीट कितने सेकंड का होता है? 0.8 सेकंड का. सी हियर यू विल अंडरस्टैंड व्हाई हार्ट इज सच अ वंडरफुल ऑर्गन ना. क्यों इतना बढ़िया ऑर्गन है, क्यों भगवान ने एक स्पेशल ऑर्गन बॉडी को दिया है. दैट इज, सी दिस कार्डियक साइकिल, मतलब एक हार्ट बीट 0.8 सेकंड का हो गया. दैट मीन्स व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग वन कार्डियक साइकिल, वन हार्ट बीट के टाइम पे क्या हो गया? हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट किया, पूरा ब्लड बाहर भेजा और फिर उसने रिलैक्स कर लिया, ब्लड को अंदर भी ले लिया. ठीक है, दिस इज वन हार्ट बीट, वन कार्डियक साइकिल. मूविंग नेक्स्ट, नाउ सी द क्वेश्चन दैट आई आस्क्ड इन अ प्रीवियस स्लाइड. भाई आपका 72 बीट्स पर मिनट आया कैसे? नाउ सी वी हैव अ नंबर 0.8 सेकंड है आपके पास. एक हार्ट बीट कितने का है? 0.8 का. ठीक है, अब एक मिनट में कितने सेकंड हो गए? इन अ मिनट यू विल गेट अ 60 सेकंड. ठीक है, अब आप कैलकुलेशन लगा लो. 60 डिवाइडेड बाय 0.8, दिस इज 0.8, वन कार्डियक साइकिल. 60 सेकंड मतलब एक मिनट. तो 60 को 0.8 से डिवाइड करो. सी दिस कैलकुलेशन एंड विच नंबर यू विल बी गेटिंग? दिस इज व्हाट द नंबर यू विल बी गेटिंग. दैट इज, ये नंबर आएगा, दैट इज 75. तो एक मिनट में कितने हार्ट बीट्स हो गए? 75. When I talk about 72 beats per minute or 75 beats per minute, ये कोई फिक्स नंबर नहीं होता है. हार्ट बीट आपके ऊपर नीचे चलते रहते हैं. दैट इज इन अ वाइडर रेंज in between 60 bits per minute to 85-90 bits per minute. That's quite normal कि बहुत सारी एक्टिविटीज के ऊपर आपके हार्ट बीट्स ऊपर नीचे होते रहते हैं. ठीक है, 75 और 72 इज जस्ट द रेफरेंस नंबर. अगर मैं दौड़ रहा हूं, बहुत फास्ट दौड़ रहा हूं, ठीक है, हार्ट बीट्स बढ़ जाएंगे. बहुत फास्ट दौड़े, जिम में जाके आए, है ना, हार्ट बीट्स आपके 100 के ऊपर चले जाएंगे. अगेन इट विल कम डाउन. एक जगह पे शांति से बैठे हैं, आराम कर रहे हैं, हार्ट बीट्स आपके पैसेट ही रहेंगे. इट मे बी अराउंड 60 और 65, राइट. सो दिस इज व्हाट द कैलकुलेशन ऑफ गेटिंग अ नॉर्मल हार्ट बीट्स. मूविंग ऑन, व्हाट इज स्ट्रोक वॉल्यूम एंड कार्डियक आउटपुट? स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक समझते हैं ना. यू पीपल माइट बी वॉचिंग अ क्रिकेट. क्रिकेट में क्या लगता है? एक स्ट्रोक लगा मतलब एक स्ट्रोक में 4 रन आए, एक स्ट्रोक में 6 रन गए. सो इन वन स्ट्रोक हार्ट इज पंपिंग आउट व्हाट अमाउंट ऑफ वॉल्यूम? एक स्ट्रोक मतलब एक सिस्टोल. हार्ट ने सिस्टोल किया, ब्लड को बाहर निकाला. सिस्टोल, ब्लड बाहर. तो भाई एक सिस्टोल में कितना ब्लड बाहर आता है, कितना वॉल्यूम बाहर आता है? दैट इज स्ट्रोक वॉल्यूम. एंड व्हाट इज द आइडियल स्ट्रोक वॉल्यूम? इट इज समवेयर अराउंड 70 ml. हर एक सिस्टोल में हार्ट 70 ml ब्लड को बाहर निकाल देगा. Every systole, heart is pumping out 70 ml. Now, what is cardiac output? Cardiac output is stroke volume multiplied by heart rate. कार्डियक आउटपुट मतलब अगर एक स्ट्रोक में हार्ट 70 ml निकालता है तो एक मिनट में कितना निकालेगा? हाउ विल यू डू दिस कैलकुलेशन? आपके पास ये नंबर है, हार्ट रेट कितना है? 72 बिट्स पर मिनट. दैट्स द एवरेज हार्ट रेट. ठीक है, ऊपर नीचे होता रहता है. तो वो हो गया 72. इफ यू विल मल्टीप्लाई दिस, यू विल गेट दिस आंसर. नियरली 5 liters of blood every minute heart is pumping out. This is your cardiac output.
ये आपका कार्डियक आउटपुट हो गया। नाउ सी हाउ वंडरफुल ऑर्गन द हार्ट इज। क्यों ये वंडरफुल ऑर्गन है? Heart is almost circulating 5 liters of blood every single minute. Think of the heart. इतना छोटा सा ऑर्गन है, यहां पे रहा है, ठीक है, इट्स द साइज ऑफ योर फिस्ट, ठीक है, उसमें भी 4 चैम्बर लग जाएंगे आपके, है ना। तो उसमें सिर्फ वेंट्रिकल्स 5 लीटर ब्लड को हर मिनट में सर्कुलेट करवा लेते हैं। दिस इज व्हाट द ब्यूटी ऑफ द हार्ट इज, right? And heart is not doing this only for a minute. This is doing it for 24/7. This is doing it for your whole life without any rest. And that's the reason heart is the most wonderful organ of the body. I hope you enjoyed this topic, right? Normal blood volume क्या है आपके शरीर में? 5 से 5.5 लीटर। तो लगभग पूरे ब्लड को वो सर्कुलेट करवा लेता है। That is what your cardiac output is. Okay, I hope it is interesting. Okay, any doubt, just write it into the comment box. Okay, last but not the least, okay, we discuss the cardiovascular system. कार्डियो हार्ट डिस्कस हो गया, वास्कुलर्स ब्लड वेजल्स हमने डिस्कस कर ली। अब ब्लड वेजल के अंदर क्या है? ब्लड चल रहा है, तो ब्लड डिस्कस करते हैं, ठीक है। ब्लड में बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, वी विल डिस्कस द कंपोजिशन ऑफ ब्लड। एवरीवन नोज व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ ब्लड, है ना, चौथी पांचवी से सीख रहे हैं हम। ब्लड में क्या होता है? सेल्स प्लस प्लाज्मा, सेल्स प्लस प्लाज्मा। विच 3 टाइप्स ऑफ द सेल्स आर प्रेजेंट इन द ब्लड? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। अपार्ट फ्रॉम सेल्स देयर इज अ प्लाज्मा। प्लाज्मा में क्या होगा? ये 3 सेल्स हो गए और ये प्लाज्मा। प्लाज्मा में क्या है? पानी है। Larger part of a plasma is water. Along with the water, there is a sugar, there is a fat, there is a fibrinogen, and many other things are there. Okay, these are all coming into the plasma. So, what is the function of a blood? Majorly, you know about the erythrocytes or red blood cells. They are responsible for transporting the oxygens to the cell. Oxygen nutrients जो पहुंचाते हैं cells को, ये काम करते हैं RBCs. प्लेटलेट्स आर फॉर्मिंग द ब्लड क्लॉट्स। हाँ, यहां पे चलो मान लो कट लग गया, ब्लीडिंग होगा, ब्लीडिंग के बाद क्या हो जाता है? क्लॉटिंग हो जाता है, ब्लीडिंग बंद हो जाता है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दिस प्लेटलेट। हु आर द सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी विच फाइट द एक्सटर्नल इन्फेक्शंस? दिस व्हाइट ब्लड सेल्स फाइट द एक्सटर्नल इन्फेक्शंस। Apart from this, what other things the blood does? It eliminates the waste product. It is also there to regulate the body temperature. पूरे शरीर के तापमान को भी ये रेगुलेट करता है, ठीक है। These are just a few functions of the blood. Many more are there, but ये limited है, but जरूरी है, आपको याद रखना है। This is about the blood. Okay, so that's it for a day. Next, what are we going to discuss? We'll be discussing the blood pressure. We'll be discussing the high blood pressure, hypertension, and we'll be discussing the disadvantage or the consequences of the hypertension. अगर आप hypertension को treat नहीं करते हो, ultimately it leads to cardiovascular disease like a heart attack, like a heart failure, or it may be angina pectoris or even a brain stroke. All these things we will discuss in a next video. Meanwhile, take care, have a nice weekend, and thank you for the kind listening. Thank you.